ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جیپ کے انجن کی گڑگڑاہٹ سنسان سڑک کی خاموشی کو چیرتی جا رہی تھی۔ عباد جہانگیر وردی پہنے جیپ میں موجود تھا۔ چہرے کے زاویے کئی حد تک خراب معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سختی اور تلخی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گرد تھکن کے سائے تھے، جسے کئی راتوں سے نیند اس سے روٹھی ہوئی ہو۔ سیاہ وردی پر گرد کی ہلکی تہ جمی ہوئی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف جھاڑیاں اور کچھ کچے راستے نظر آ رہے تھے۔ یکایک ایک لڑکی نے سڑک کے بیچ آ کر ہاتھ کے اشارے سے جیپ کو روکنے کی کوشش کی۔ عباد کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ اکثر اوقات ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے جس میں لڑکیاں اگلے شخص کو مجرم بنا کر خود وکٹم بن جاتی تھیں اور پھر بعد میں بلیک میل کرتی تھیں۔ ایسے کئی کیس وہ ہینڈل کر چکا تھا، مگر آج معاملہ الٹ تھا۔ وہ سسپینڈ ہو کر لوٹ رہا تھا، اسی لیے کسی بھی قسم کے کیس میں ہاتھ ڈالنے کا اس کا ہرگز موڈ نہیں تھا۔ اس نے فوراً بریک دبایا۔ جیپ ایک جھٹکے سے رکی۔ سامنے پیلے رنگ کے لباس میں لپٹی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں خوف، بے بسی اور التجا صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ اسے دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مایوں کی دلہن ہے۔ لڑکی قریب آئی، کھڑکی کے پاس جھکی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، سر، خدا کے لیے میری مدد کریں، مجھے کسی محفوظ جگہ پہنچا دے، میری زندگی کو خطرہ ہے، میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کا احسان ہے کہ آپ بروقت یہاں پر آ گئے، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ عباد نے اس کی طرف دیکھا، مگر تاثرات میں ذرا نرمی نہ آئی۔ آواز میں تلخی اور تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں سسپینڈ ہو چکا ہوں، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تمہیں کسی اور سے امید رکھنی چاہیے۔ وہ بہت تلخ لہجے میں بولا تھا۔ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ سامنے کھڑا وجود ایک لڑکی کا ہے۔ اس لڑکی کے کندھے لرزنے لگے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ سر، خدا کے واسطے میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، اگر آپ نے مدد نہ کی تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ عباد نے جیسے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ اندر کوئی تذبذب سا ابھرا، مگر چہرہ ویسے ہی سخت رہا۔ میں کہہ چکا ہوں، مجھے تمہاری… اس کے جملہ مکمل ہونے سے پہلے لڑکی گھوم کر جیپ کے دوسری حصے پر آئی تھی اور جھٹ سے دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ عباد کے چہرے پر حیرت، غصہ اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات آئے۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ نکل جاؤ میری گاڑی سے۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کو ہلتا نہ دیکھ کر وہ ایک بار پھر دھاڑا، سمجھ نہیں آ رہا محترمہ، ابھی اور اسی وقت گاڑی سے اتریں، ورنہ میں کوئی بھی دفعہ لگا کر آپ کو حوالات میں ڈال دوں گا۔ میرا مزاج مت آزمائیں، میں پہلے ہی سسپینشن کا بوجھ اٹھا رہا ہوں۔ اس کی آواز میں وہی کڑک اور وہی کرختگی تھی جس کی وجہ سے لوگ اس سے خوف کھاتے تھے، مگر ساتھ بیٹھی لڑکی اب پہلے جیسی سہمی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس نے آہستہ سے دوپٹہ چہرے سے ہٹایا۔ آنکھوں میں نمی، ہونٹوں پر کپ کپاہٹ لیے اس کی طرف دیکھتے دھیمے اور مگر تھر تھراتے لہجے میں بولی، عباد بھائی، میں نرمین ہوں، آپ ہی کی نرمین، پلیز میری مدد کر دیں۔ عباد کا پورا وجود جیسے لمحہ بھر کے لیے منجمد ہو گیا۔ آنکھوں میں حیرت کی ایک لہر دوڑی، چہرے پر کرب اور گلے میں کچھ پھنس گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ نرمین، تم اور یہاں؟ اس کی آواز بہت مدھم اور ہلکی تھی، جسے سانسوں میں گم ہو رہی ہو۔ نرمین نے نظریں اس کے چہرے پر جما دی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عباد بھائی، میری زندگی بہت بڑی مصیبت میں ہے، وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، میں کسی کو کچھ سمجھا نہیں پا رہی، بس آپ سے ایک آخری درخواست ہے، کسی بھی طرح مجھے کسی سیف جگہ پہنچا دے، پلیز۔ آپ کے علاوہ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں آپ کے پاس بھی نہیں ٹھہرتی، لیکن جب میں نے دور سے آپ کی جیپ آتی دیکھی تو میں آپ سے مدد مانگنے لگی، لیکن آپ مدد نہیں کر رہے تھے، اسی لیے میں آپ کی جیپ میں بیٹھ گئی۔
प्लीज भाई मुझे कहीं पहुंचा दे, वरना वो लोग मुझे खत्म कर देंगे और मैं बिना बदला लिए मरना नहीं चाहती। मैं इन लोगों को जहन्नुम वासिल करके ही इस दुनिया से जाऊंगी। इबाद ने रुख मोड़ लिया। उसका सांस बेतरतीब हो चुका था। उसका मजबूत वजूद जैसे किसी अनजानी लहर से लरज उठा था। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने खुद को संभालते हुए थोड़ा सा रुख मोड़कर सर्द लहजे में पूछा, तुम शादी कर रही हो? वो माइयों के लिबास में थी। उसे देखकर ही मालूम हो रहा था कि वो अपनी शादी से भागी है। उसकी आवाज में एक अनजानी लड़खड़ाहट थी, जैसे अल्फाज गले में अटक रहे हों। नरमीन ने सर झुका लिया, फिर हौले से अज़बात में सर हिलाया। हाँ, शादी कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है जिसने सब कुछ बदल दिया है। प्लीज इबाद भाई, आपसे गुजारिश है, पहले यहां से चलें, फिर मैं सब कुछ बताऊंगी। मेरी जान को खतरा है। वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। इबाद ने एक लंबी सांस ली। उसकी नजरें सड़क पर जम गई। हाथ बेसाख्ता स्टीयरिंग पर मजबूती से बंध गए। लम्हा भर को वो खामोश बैठा रहा, जैसे कुछ फैसला कर रहा हो। फिर एक आखिरी नजर नरमीन पर डाली। उसके भीगे चेहरे को देखा और खामोशी से गाड़ी का गियर बदला। जीप एक बार फिर हरकत में आ गई, मगर अब रुख उसके घर की तरफ था। इबाद की पेशानी पर पसीने की नमी उभरी हुई थी। दिल की धड़कनें तेज थीं। वो जानता था अब मामला सिर्फ एक अनजान लड़की की मदद का नहीं रहा। अब उसकी जिंदगी के एक ऐसे बाप ने खुद ब खुद पलट कर सामने आना शुरू कर दिया था, जिसे वो बरसों से बंद कर चुका था। मगर किस्मत ने शायद एक बार फिर उसी सफ़े को खोलने का फैसला किया था। वो उसे लेकर सीधा अपने बंगले पर आया और अब ड्राइंग रूम में वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। ड्राइंग रूम की खामोश फिजा में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दूर कहीं से आती पंखे की हल्की सी साएं साएं गूंज रही थी। इबाद जहांगीर का बंगला पुरशिकवा जरूर था, मगर उस लम्हे वो दीवारें जैसे गवाह बन गई थी, एक तूफानी लम्हे की। कमरे की मध्यम रोशनी में नरमीन सोफे पर बैठी थी, सर झुकाए, दुपट्टे को पल्लू को उंगलियों में मरोड़ती हुई, जैसे अंदर बहुत कुछ थामने की कोशिश कर रही हो। आंखों से बहते आंसुओं के निशान उसके गालों पर वाज़ेह थे। इबाद ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। लहजे में एक अजीब सी नरमी थी, जो किसी सख्त मिजाज शख्स से कम ही सुनने को मिलती है। पानी पियो और अब बताओ क्या हुआ नरमीन? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अपनी शादी से भागी हो? मगर क्यों? नरमीन ने लरसते हाथों से ग्लास लिया, एक छोटा सा घूंट लिया और फिर नजरें इबाद पर जमाई। आवाज में लर्जिश थी, मगर अल्फाज साफ थे। लेकिन आप पहले ये बताएं, आपको सस्पेंड क्यों कर दिया गया? आप तो अपने डिपार्टमेंट का फख्र थे, सब लोग आपकी इज्जत करते थे। ऐसा क्या हुआ? वो काफी परेशानी से बोली थी। इबाद ने नजरें चुराई। उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी आई, मगर लहजा तल्ख था। छोड़ो इस बात को नरमीन, अब वो अहम नहीं। मेरे सस्पेंशन से ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि तुम अपनी शादी से क्यों भागी हो, और ऐसा क्यों कह रही थी कि तुम्हारी जान को खतरा है? वो वाकई परेशान था। उसकी परेशानी उसके लहजे और चेहरे से साफ झलक रही थी। नरमीन ने चंद लम्हे खामोशी से इबाद को देखा, जैसे अल्फाज ढूंढ रही हो। फिर अचानक उसके बंद होठों से सिसकी निकल गई और वो बेकाबू होकर रोने लगी। इबाद बेचैन होकर एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कहने ही वाला था कि नरमीन टूटे हुए लहजे में बोल पड़ी। जिस खानदान में मेरी शादी तय हुई थी, वो लोग, वो इंसान नहीं हैवान है इबाद भाई। आपको मालूम है, मेरे बाबा का कत्ल कर दिया उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि वो इस रिश्ते से इनकार कर रहे थे, और वो बिल्कुल दुरुस्त इनकार कर रहे थे। वो लोग हैवान हैं, उनमें इंसानियत नहीं है। वो लोगों को इस तरह कत्ल करते हैं जैसे उनके लिए ये एक आम सी बात हो। इबाद के चेहरे पर शदीद हैरत और गुस्सा आया, मगर वो खामोश रहा। नरमीन बोलती रही, जैसे बरसों का बोझ उस एक लम्हे में उंडेल रही हो। वो जबरदस्ती मेरी शादी एक गुंडे से करवा रहे थे। मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत रोई, लेकिन वो कहते रहे कि इज्जत लड़की की जबान में नहीं, बाप के फैसले में होती है। लेकिन जब बाबा ने इनकार किया तो अगली सुबह हमें उनकी लाश मिली। उसका सांस रुकने लगा था, मगर वो अपनी बात मुकम्मल करने पर बज़िद थी। आज निकाह था, और जब वो मुझे ले जाने आए तो मैंने मौका देखकर भाग निकलने की हिम्मत की।
मेरा इरादा पुलिस स्टेशन जाने का था, लेकिन आपकी जीप सामने आई और जब आपको देखा तो लगा जैसे खुदा ने मेरी सुन ली। भाई, मुझे बचा लें, मैं उनके पास नहीं जा सकती, वो लोग मुझे मार देंगे। कमरे की फिजा मजीद बोझल हो चुकी थी। इबाद का दिल धड़क रहा था, आंखों में शदीद इज़्तिराब छुपा हुआ था। जिस लड़की को जिंदगी भर चाहा, जिस लड़की के लिए उसने अपना आप बदल दिया, जिस लड़की के लिए उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, वो लड़की आज उसके सामने बिल्कुल बेबस होकर बैठी हुई थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन हर जुमले के साथ उसकी आंखों की सख्ती बढ़ रही थी, जैसे अंदर का लावा दबाव के साथ उभर रहा हो। नरमीन, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया कि तुम वहां से निकल आई। अगर तुमने हिम्मत ना की होती तो आज शायद तुम्हारी किस्मत किसी दरिंदे के हाथ में होती। वो लम्हा भर को रुका, नरमीन की तरफ देखा जिसकी आंखों में अब भी आंसू झलक रहे थे, मगर चेहरे पर अब वही बेयकीनी का साया था। रही तुम्हारी मदद की बात, तो मैं तुम्हारी मदद हर कीमत पर करूंगा। माजी में हमारे दरमियान जो कुछ हुआ अब वो दफन हो चुका है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना कोई वजाहत, ना कोई माफी। और अभी इसी वक्त मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि एक लड़की मेरे सामने इंसाफ और हिफाजत की भीख मांग रही है। इस वक्त मुझे अपना मसीहा समझो। इबाद जहांगीर वही करेगा जो इसे करना चाहिए। नरमीन ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा जिसे दिल की धड़कन सुन रही हो, फिर आहिस्ता से बोली। लहजा भर आया था मगर यकीन से भरा। इबाद भाई, मैं जानती हूँ आप कैसे इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ माजी को याद करके कोई बदला नहीं लेंगे, आप मुझे सिर्फ महफूज रखेंगे। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ। उसके अल्फाज ने उसके दिल की किसी रग को छू लिया था। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर सीधा हुआ और संजीदगी से बोला, परेशान ना हो नरमीन, अब तुम महफूज हो। मैं कुछ करता हूँ। मुझे उन लोगों के बारे में मुकम्मल तफसील चाहिए कि वो लोग कौन हैं। उस गुंडे का नाम क्या है जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी? और सुलेमान अंकल, उनके कत्ल की मुकम्मल हकीकत मुझे जाननी है। कब, कहाँ और क्यों? नरमी ने आहिस्ता से गहरी सांस ली। हाथ दुपट्टे के पल्लू पर सख्ती से बंधे हुए थे। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, उस गुंडे का नाम शाकिर है। वो मोहल्ले का बहुत बड़ा बदनाम गुंडा है। असल में जब हमने अपना पुराना मकान छोड़ा था, उसके बाद हम कदरे गरीब इलाके में चले गए थे। आप अच्छी तरह जानते हैं बाबा की पेंशन से हमारा गुजारा होने लायक था। सिर्फ आप ही थे जो हमसे किराया कम लेते थे, लेकिन जिससे भी हम किराए पर बात करते वो मुंह फाड़ कर मांगता। इसीलिए मुश्तरका फैसले पर हमने यही डिसाइड किया था कि हम किसी गरीब इलाके में चले जाएंगे। लेकिन हमारा ये फैसला हम सब के लिए अजाब साबित हुआ। इबाद ने खामोशी से सर हिलाया जैसे वो ये सब समझ रहा हो। उस शाकिर ने मुझे पहली बार कॉलेज से वापसी पे आते देखा था। तब से ही उसकी नजरें मेरे पीछे लग गई। पहले छोटे मोटे बहाने, फिर रास्ता रोकना और फिर बाकायदा पैगामात आना शुरू हो गए। मैंने उसे हर तरीके से समझाया, मिन्नतें की। बाबा ने भी उसे कई बार घर के बाहर से हटाया। उसे कहा कि हम शरीफ लोग हैं, हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश ना करे, मगर वो बाज नहीं आया। वो बेगैरती पर उतर आया था। इंसानियत के नाम पर वो उसका अलिफ भी नहीं जानता था। एक दो बार उसने बाबा पर हाथ भी उठाया है। हम लोग वो इलाका छोड़ देना चाहते थे, लेकिन जहां भी हम किराए के मकान के लिए बात करने के लिए जाते तो अगले ही रोज वो मालिक मकान हमसे हाथ जोड़कर अपना पीछा छुड़ा लेता था। और ये सब भी शाकिर ही करवा रहा था। नरमीन की आंखों से फिर आंसू झलकने लगे, आवाज भर आ गई। फिर एक दिन वो बाबा के साथ बहस पर उतर आया कि मुझे सादगी से निकाह दे दो। बाबा ने साफ इनकार कर दिया कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम जैसे गुंडे को अपनी बेटी नहीं दूंगा। और कहते हैं ना, इन जैसे लोगों से ना सलाम दुआ अच्छी है और ना ही दुश्मनी। हमारे लिए भी दुश्मनी जहर की मानंद साबित हुई। कुछ ही दिन बाद एक रात वो घर में घुस आया और बाबा को सबके सामने मार दिया, सिर्फ इसलिए कि बाबा ने मेरा रिश्ता उससे जोड़ने से इनकार किया था। पुलिस में रिपोर्ट की, मगर कुछ नहीं हुआ। कोई सुनता ही नहीं था। वो पैसों और ताल्लुकात से सबको खरीद लेता था। उसके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में अब इश्ताल था, मगर चेहरा काबू में रखा था।
वो नरमी से बोला, और आज तुम्हारी शादी का दिन था। ये अल्फाज इबाद जहांगीर ही जानता था कि उसने कितनी हिम्मत से अदा किए थे। नरमीन ने इस बात में सर हिलाया और सिसकियां लेते हुए बोली, हाँ, आज माइयों की रस्म थी। मैंने इस मौके का फायदा उठाया, किसी को कुछ बताए बगैर घर से निकल आई। खुदा की कसम, अगर आज आप ना मिलते तो शायद मैं कहीं मर जाती। इबाद भाई, प्लीज मुझे बचा लें। मैं उन लोगों को जहन्नम वासिल करके इस दुनिया से जाना चाहती हूँ, जिस तरह मेरा बाप मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मारा था। इबाद भाई, मैं उस आदमी को भी खत्म कर देना चाहती हूँ। उसने एक गहरी सांस ली, थोड़ा आगे होकर संजीदगी से बोला, शाकिर के खिलाफ पहले ही कई कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। भत्ताखोरी, बदमाशी, लड़कियों को हरासा करना, सब कुछ मालूम है मुझे। और अब उस पर कत्ल की भी रिपोर्ट आएगी और तुम होगी उसकी चशमदीद गवाह। नरमीन ने चौंक कर इबाद की तरफ देखा, जिसे यकीन ना आया हो। हाँ नरमीन, अब वो नहीं बचेगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम मेरे पास हो और तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। तुम्हें किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो थोड़ा रुका, फिर नरम लहजे में बोला, और एक और बात, मैं किसी माजी को याद नहीं करूंगा, ना ही कोई पुरानी बात दिल में रखूंगा। मेरे लिए इस वक्त सिर्फ तुम्हारी हिफाजत और इंसाफ अहम है। तुम्हारा माजी मेरे लिए एक बंद किताब है। नरमीन ने बात की बात सुनी और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून आ गया। वो जान गई थी कि वो सही जगह पर पहुंची है, एक ऐसे शख्स के पास जिसे वो सिर्फ भाई कहकर नहीं, इंसानियत के रिश्ते से भी अपना मुहाफिज समझ सकती थी। चंद लम्हों बाद वो उसे गेस्ट रूम में छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। दिल काफी भारी हो रहा था। कुछ वक्त वो अकेले गुजारना चाहता था। माजी का एक एक लम्हा उसे न जाने क्यों एक अजीब तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा सामने तारीक आसमान पर बादल को गौर से देख रहा था। कहीं कहीं से बूंदें गिरने लगी। रोशनी मध्यम थी और बाहर सड़क पर जलती जर्द लाइट्स बारिश की नमी से धुंधलाई हुई थी। उसकी आंखें बाहर लगी हुई थी, मगर नजर कहीं और, बहुत पीछे, माजी के उस धुंधलाए मंजर में गुम थी, जहां बहुत कुछ टूट चुका था। सुलेमान साहब और उनका खानदान इबाद के बंगले में पिछले हिस्से में किराए पर रहते थे। शरीफ, सादा मिजाज और खामोश तबा लोग थे। इबाद के बड़े भाई का घर करीब ही था, अलग मगर ताल्लुक में करीबी। बच्चों की किलकारियां, भाभी की नरम मुस्कुराहट और भाई का मजबूत कंधा, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, जब एक रोज अचानक जैसे वक्त थम गया। हादसा हुआ, ऐसा हादसा जिसने पूरे खानदान की बुनियाद हिला दी। बड़े भाई और भाभी का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। वो दोनों जुड़वा मासूम बच्चे जो महज 3 साल के थे, उस वक्त घर पर मौजूद थे। ना माँ को कुछ समझ आई और ना बाप लौट सका। उसने खुद अपने बाहों में उन्हें लिया, उनके आंसू पहुंचे, उनके नाज उठाए, नींदों में जागे, दुआओं में बहले, लेकिन कुछ टूट चुका था। उन तकलीफदेह दिनों में महज नरमीन थी जो इन मासूम बच्चों के साथ खेलती, उन्हें खाना खिलाती, कपड़े बदलती, जैसे अपनी सारी दुनिया वो इन 2 छोटे बच्चों में देखने लगी हो। इबाद, जो अंदर से मुकम्मल तौर पर बिखर चुका था, उसे खामोशी से देखता रहता। वो लड़की जो कभी फकत पड़ोस की बेटी थी, अचानक एक सहारा बन गई थी। वो न सिर्फ बच्चों की हमराज थी, बल्कि इबाद के दिल का एक ऐसा नरम गोशा भी बन गई थी जिसका उसे खुद भी शऊर नहीं था। मोहब्बत कब हुई, कैसे हुई, इबाद को कभी इल्म ना हुआ। इंतकाल के 3 महीने बाद उसने सुलेमान साहब से खुद जाकर बात की, साफ सादा अंदाज में, कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो नरमीन को मेरे निकाह में दे दे। इसे घर में एक औरत की ज़रूरत थी जो उसके भतीजों को भी संभालती और उसकी भी हमसफर बनती। लेकिन वो भूल बैठा था कि वो महज 18 साल की एक मासूम लड़की है जिसका बाप उसकी मोहब्बत में अंधा है। सुलेमान साहब का रद्द अमल शदीद और 2 टोक था। इबाद बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, मगर तुम्हारे सर पर 2 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी है। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, जिंदगी को जीने के दिन हैं उसके, बच्चों को संभालने के नहीं। और बात वहीं खत्म हो गई। चंद दिन बाद सुलेमान साहब ने मकान छोड़ दिया। कहाँ गए किसी को मालूम नहीं था।
इबाद ने भी कोई राब्ता ना किया, ना नाराजगी थी और ना ही शिकायत। सिर्फ एक ठहरा हुआ सा दुख था जो वक्त के साथ दब गया, ये शायद दबा दिया गया। और आज 3 साल बाद वही नरमीन फिर से उसी घर में, उसी छत तले उसके सामने बैठी थी। वो लड़की जिसे वो अपने दिल में दफना चुका था आज जिंदा होकर उसके सामने खड़ी थी, कमजोर, सहमी हुई, मदद की तलबगार। उसकी आंखें भीगने को थी, मगर उसने पलके जोर से झपक कर उन कतरों को रोक लिया। ये वक्त किसी जज्बे का नहीं था, लेकिन अंदर कहीं एक सदा थी। जिस मोहब्बत को उसने दफन किया था वो सांस लेने लगी थी, और इबाद जानता था अब वो उसे फिर से सोने नहीं देगा। सुबह की नरम धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में दाखिल हो रही थी। हल्की सी ठंडी हवा कमरे की फिजा में नरमी घोल रही थी। वो गहरे सुकून के आलम में बिस्तर पर लेटी सो रही थी, जैसे एक थकी हारी रूह को पहली बार तहफ्फुज मिला हो। आंखों के गिर्द नींद की मोहरें थीं और चेहरे पर इत्मीनान की एक हल्की सी लहर, मगर अचानक उसे अपने वजूद पर किसी की मुसलसल नजरें महसूस हुईं। पहले तो उसने बेख्याली में करवट ली, जैसे ख्वाबों में ही यह एहसास झटक दिया हो, मगर लम्हा भर को वो जाग गई। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खुली और उसने इधर उधर देखा। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सिवाय हवा के हल्के से शोर के। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई तो वो चंद लम्हे साकित रह गई। दरवाजे पर 2 छोटे बच्चे खड़े थे, तकरीबन 6 साल के, नाइट सूट में मलबूस, बिखरे बाल और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। दोनों के चेहरे पर हैरत और तजस्सुस था, जैसे कोई नायाब चीज देख ली हो। वो फौरन से पहचान गई। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर गई। वो आहिस्ता से बिस्तर पर उठकर बैठी और हाथ के इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया। वो तो जैसे उस इनविटेशन के ही इंतजार में थे। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके करीब आ गए। उसने नरमी से उनकी तरफ देखा और मोहब्बत भरी आवाज में कहा, मुझे मालूम है तुम दोनों कौन हो। वो दोनों के बाल संवारते हुए मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोली। बच्चे थोड़ा चौंके, एक दूसरे को देखा, फिर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। तुम्हारा नाम अरहम है और तुम्हारा नाम जोहान। अरहम 5 मिनट बड़ा है और जोहान 5 मिनट छोटा। वो अपनी ही बात पर खिलखिलाई थी। दोनों बच्चों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो धीरे से बोली, 3 साल पहले मैं तुम दोनों के साथ खूब खेलती थी। हर वक्त तुम मेरी गोद में होते थे, लेकिन फिर हम चले गए और तुम दोनों मुझे भूल गए। अरहम ने फौरन बोलने में पहल की, माथे पर शिकने डाले। ये तो याद नहीं कि आप कौन हैं, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल एक डॉल की तरह। वो बेसाख्ता मुस्कुराई। जोहान भी जल्दी से उसके साथ बैठ गया। उसकी आवाज में बेसाख्तगी थी, मगर मासूमियत दिल छू लेने वाली। आप हमारे चाचू की वाइफ बन जाए ना, फिर आप हमारे साथ रहेंगी। आप इतनी प्यारी हैं और आपकी जिल्द कितनी नरम है। अगर मैं आपकी उम्र का होता तो मैं आपसे शादी कर लेता। वो हंस पड़ी, खिलखिलाकर, जैसे बरसों बाद दिल से कह कहा निकला हो। हाथ बढ़ाकर दोनों के गाल थपथपाए। अल्लाह अल्लाह, कितनी बातें करते हो तुम दोनों, और ये शादी वाली बातें किसने सिखाई तुम्हें? उसके सवाल पर दोनों बच्चों ने शरारती अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके कान के करीब झुके। जोहान ने राजदाराना अंदाज में धीरे से कहा, हमारी टीचर है ना, वो चाचू को बहुत पसंद करती है, लेकिन हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए हम चाहते हैं चाचू की शादी हो जाए, वरना वो हमारी चाची बन जाएगी। उसकी बात सुनकर वो जोर से हंसी, हाथ से मुंह ढांप कर, जैसे बच्चों की इस भोली बात ने उसके दिल का मौसम बदल दिया हो। वो दोनों अब उसके करीब बैठे, जैसे बरसों बाद वो खोई हुई मोहब्बत, शफकत और खलूस एक ही लम्हे में लौट आया हो। मासूम बच्चे अपने लिए मोहब्बत खुद तलाश करते हैं, ये बात आज उसे समझ आ रही थी। किचन में हल्की हल्की खुशबू फैल रही थी, अंडे तलने की, पराठे की सुनहरी महक और दूध में उबलती इलायची की खुशबू। फिजा में एक घरेलू सुकून था। इबाद जहांगीर के घर का किचन जदीद तर्ज पर बना हुआ था, मगर इस वक्त वहां की सबसे खास चीज वो खुशगवार माहौल था जो नरमीन ने बच्चों के साथ अपने अंदाज से बसा दिया था, और वो ये सब जानबूझकर कर रही थी। अपना दुख भी वो जायल करना चाहती थी। एक ही अजियत को महसूस कर करके उसे अपना आप खोखला महसूस हो रहा था।
ज़ुहान और अरहम डाइनिंग टेबल पर बैठे अपनी छोटी छोटी टांगें झुला रहे थे। दोनों ने रंग बिरंगे नाइट सूट पहन रखे थे। हाथ में दूध के गिलास और नजरों का मरकज नरमीन थी, जो चम्मच चलाती, टोस्ट पलटती और बच्चों से बातें करते मुस्कुरा रही थी। ज़ुहान ने अचानक संजीदा सा मुंह बनाया और बोला, आप गेस्ट रूम में सोई थी? मतलब आप हमारी मेहमान हैं? तो हम मेहमानों से काम क्यों करवाएं? अभी थोड़ी देर में चाचू जाग जाएंगे, वो रोज हमें नाश्ता बना कर देते हैं, आप भी वही खा लीजिएगा। लिटिल फेरी, आप हमारे पास आकर बैठ जाए ना। वो कदरे परेशान था। जो लड़की उसका पहला क्रश बनी थी, वो उसी के लिए नाश्ता बनाए, उसको कहाँ गवारा था। नरमीन इस तर्ज खिताब पर बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ी। बच्चों की बातें और उनका लहजा दिल को छू जाने वाला था। अरे वाह लिटिल फेरी, उसने मुस्कुराकर ज़ुहान को देखा। कितना प्यारा नाम रखा है तुमने मेरा। लेकिन कोई बात नहीं, चाचू भी तो रोज काम करते हैं ना। आज मैं उन्हें नाश्ता बना कर दूंगी और तुम दोनों को भी। उसने पलटकर पराठे को पलटा, फिर अंडे के पास गई और बात जारी रखी। और तुम्हें पता है, मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बनाना आता है। आज मैं अपने दोनों शहजादों को अपने हाथ से नाश्ता खिलाऊंगी। अरहम और ज़ुहान अब पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रहे थे। वो धीरे से बोली, और तुम्हें पता है, जब तुम 3 साल के थे, सिर्फ मेरे हाथ से दूध पीते थे, मेरे साथ खेलते थे। तुम्हारी मामा वो भी यही कहती थी कि नरमीन, तुमने तो हमारे बच्चों को अपना बनाकर छोड़ दिया है। ये सुनते ही बच्चों के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। अरहम ने धीरे से पूछा, क्या हमारी मामा बहुत खूबसूरत थी? अक्सर चाचू बताते हैं। नरमीन के हाथ चंद लम्हों के लिए थम गए। वो आहिस्ता से पलटी, उन दोनों की तरफ देखा और गहरी नरमी से बोली, बहुत खूबसूरत थी, बल्कि तुम दोनों की तरह। मगर अब वो अल्लाह के पास हैं और वहां बहुत खुश हैं। बच्चे अब कुछ संभल कर सुन रहे थे। ज़ुहान ने मासूमियत से सवाल किया, जब हम अल्लाह के पास जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? नरमीन ने नरमी से कहा, फेरीज मिलती हैं, बहुत सारी कैंडीज और अल्लाह ताला की बहुत सारी मोहब्बत। वहां कोई गम नहीं होता, कोई तन्हाई नहीं, सब हंसते खेलते हैं। ज़ुहान ने चमकती आंखों से कहा, तो मैं भी जल्दी जाना चाहूंगा वहां। नरमीन घबराकर उसके करीब आई और उसका हाथ थाम कर बोली, अरे नहीं ज़ुहान, अल्लाह ताला खुद बुलाते हैं। जल्दी या देर ये सब उनके हाथ में होता है। हमें बस अच्छे बच्चे बनकर जीना है, उनकी रजा में खुश रहना है, तभी इस जहान में हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। बच्चे अब मुतमईन थे। उनके चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई थी। वो दोनों अपने ग्लास दोबारा उठाकर नरमीन को देख रहे थे। उनकी लिटिल फेरी, जो अब सिर्फ नाश्ता नहीं बना रही थी, बल्कि उनके दिलों पर मरहम रख रही थी। उसकी बेरंग दुनिया में न जाने क्यों एक रंग सा भरने लगा था। सिर्फ एक रात उसके लिए सब कुछ तब्दील कर गई थी। उसे मालूम था इबाद के लिए उसका रिश्ता आया था और उसके बाप ने इन बच्चों की वजह से ही मना कर दिया था। हाँ, वो बहुत लड़ी थी इस बात से कि आपने रिश्ता क्यों मना किया, बल्कि इस बात से कि हम ये घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं। मगर उनकी एक ही जिद थी कि अब हम यहां नहीं रह सकते, ये सेफ नहीं है, और वो ना चाहते हुए भी अपनी बात को मानने पर राजी हो गई। वो हस्बे मामूल सुबह के वक्त किचन की तरफ तेजी से आया। जहन में यह ख्याल था कि बच्चों के जागने से पहले नाश्ता तैयार कर ले, ताकि उनके दिन का आगाज बेहतर हो। मगर जो ही उसने किचन में कदम रखा, कदम जैसे खुद ब खुद रुक गए। सामने का मंजर ठुठकने वाला था। नरमीन, जिसे वो कल रात सहमी, खामोश और रो पड़ी हालत में लाया था, इस वक्त पूरे एतमाद और नरमी से बच्चों को अपने हाथों से नाश्ता खिला रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इबाद के ज़ाविये कई हद तक बिगड़ गए थे, लेकिन वो खुद को काबू करके अंदर दाखिल हुआ और बुलंद आवाज में सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो सबने नाश्ता शुरू कर लिया। नरमीन फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई, हाथ में चम्मच थामे थोड़ा घबरा गई थी। वालेकुम अस्सलाम जी, वो मैं बस बच्चों के साथ। बच्चों ने भी बैक वक्त खुशी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम चाचू। उसी लम्हे ज़ुहान खुशी से अपनी चेयर से उतरा और दौड़कर इबाद की गोद में चढ़ गया। उसने अपने नन्हे हाथों से इबाद का चेहरा थामा और बड़े राजदाराना अंदाज में बोला,
चाचू, लिटिल फेरी ने हमें नाश्ता भी करवाया और वो कह रही है अब हमारे कपड़े भी बदलवा देंगी और हमें तैयार भी करेंगी और फिर हमारे साथ खेलेंगी भी। इबाद ने मुस्कुराहट दबाई, ज़ुहान के बालों में हाथ फेरा। लिटिल फेरी, ये तो बड़ी खास लग रही हैं भाई। अरहम ने भी बोलने में देर नहीं की और उन्होंने कहा यह हमें बचपन में भी संभालती थी, ये कहाँ चली गई थी फिर? इबाद ने एक नज़र नरमीन पर डाली जिसका चेहरा अब कदरे शर्मिंदगी से झुका हुआ था। फिर उसने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर कहा, बस बेटा, लिटिल फेरी को एक बहुत अहम मिशन पर जाना पड़ा था। अल्लाह मियाँ ने इनसे कहा था कि थोड़ा आराम करो और जब मेरे नन्हे शहजादों को दोबारा ज़रूरत हो तो वापस आ जाना। तो वो आ गई ना? बच्चे ये सुनकर हंसने लगे। ज़ुहान ने खुशी से तालियां बजाईं। तो अब ये हमेशा हमारे साथ रहेंगी? इबाद ने नरमी से कहा, पता नहीं बेटा, ये तो अल्लाह मियाँ और लिटिल फेरी की मर्जी पर है। अभी तो वो आई हैं, तुम लोग उनके साथ खेलना, लेकिन पहले जाओ कपड़े बदल लो, ठीक है? बच्चों ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया और किचन से बाहर भाग गए। इबाद ने एक लम्हे को गहरी खामोशी से नरमीन की तरफ देखा और कदले सख्त लहजे में बोला, मेरे बच्चों से दूर रहो नरमीन, तुम्हारा मसला है वो मैं हल करूंगा, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, इंसाफ दिलाऊंगा, इसका मैं वादा करता हूं। लेकिन एक बात याद रखो, इन मासूम बच्चों का दिल मत तोड़ना। नरमीन ने आहिस्ता से नजरें उठाई। उसके चेहरे पर हैरानी और दुख का इम्तिजाज था। इबाद ने अपनी बात जारी रखी। लहजा सख्त मगर जब्त में था, क्योंकि तुम्हारा मसला तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और तुम किसी महफूज जगह चली जाओगी, शायद हमेशा के लिए। मगर ये दो छोटे दिल, ये फिर से वैसे ही तड़पेंगे जैसे 3 साल पहले तड़पे थे। उसकी आवाज़ भर्रा गई, मगर उसने संभाल लिया। यादें जख्म बनकर उभर रही थी। ये जब 3 साल के थे, जब तुम उनको अपने से लगाकर चली गई थी, तब मैंने इन्हें संभाला था। मैंने इनकी चीखें सुनी थी जब वो बार बार रामी रामी पुकारते थे और कोई जवाब नहीं देता था। उसने आंखें बंद करके एक लम्हे की खामोशी ली, फिर दोबारा नरमीन की तरफ देखकर बोला, मैं इनको गोद में उठाकर रोता था और इनके आंसू साफ करता था। अब वो कदमों की आहिस्तगी से नरमीन के करीब आया। फासला कम था, मगर जज्बात का तूफान बीच में था। और अब तुम इनकी जिंदगी में लिटिल फेरी बनकर वापस आई हो, तो ये तुमसे फिर मानूस हो रहे हैं, तुम्हें चाहने लगे हैं। और अगर तुम फिर चली गई तो? नरमीन की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और नरमी से कहा, मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूं आप मुझसे खफा हैं और शायद खफा होने का हक भी है आपको, लेकिन इबाद भाई, इन सब चीजों में मेरा कसूर नहीं है। मैं बाबा से बहुत लड़ी थी, बहुत समझाया था कि मेरी मर्जी पूछें, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। इबाद ने फौरन हाथ उठाया, इशारा किया कि वो खामोश हो जाए। उसके चेहरे पर सख्ती लौट आई थी। मैं यहाँ बहस करने या तुम्हारी सफाइयाँ सुनने नहीं आया नरमीन, मैं सिर्फ यहाँ 2 टोक बात करने आया हूँ। वो चंद लम्हे रुका, फिर संजीदगी से कहा, बच्चों के साथ खेलने, उनसे मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें एक बार फिर छोड़ने का हक रखती हो। अगर तुम उनकी जिंदगी में हो तो पूरी जिम्मेदारी से रहो, और अगर नहीं रह सकती तो अभी फासला रखो, क्योंकि अब मैं उनके दिल को फिर टूटते नहीं देख सकता। कमरा खामोश हो गया। नरमीन की पलकें भीग चुकी थीं और इबाद की नजरें दीवार पर जा टिकी थी। चंद लम्हों तक वो गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून करता रहा और फिर उसे देखते हुए बोला, खैर, मैं यहाँ तुम्हारे साथ बहस नहीं करूँगा। जितना कहा है उस पर आप ध्यान देंगी। मैं अब थोड़ा केस के मुतालिक तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। इन बातों को दिमाग में बिठा लो। हमें कुछ दिन में पुलिस स्टेशन जाना है। मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की है, वो इंतज़ार कर रहे हैं। नरमीन ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन इबाद ने बात जारी रखी, नरमी से मगर रुके बगैर। और सुनो, मेरा सस्पेंशन भी कैंसिल हो गया है। नरमीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और आंखों में हैरत की झलक उभरी। वो धीरे से बोली, आपने? हाँ, मैंने करवाया, सिर्फ इस केस के लिए। उसका लहजा अब सख्त हो रहा था, जैसे वो अपने जज्बात को अल्फाज से छुपा रहा हो। वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।
मैं काफी अरसे से इस सिस्टम से बेजार हो चुका था, मगर जब बात तुम्हारे बाप के कत्ल और तुम्हें जबरदस्ती शादी पर मजबूर करने जैसी चीजों तक पहुंची तो मैं खुद को रोक नहीं सका। नरमीन की नजरें झुक गईं। उसने आहिस्ता से अपनी उंगलियां मरोड़नी शुरू कर दी। इबाद ने गहरी सांस लेकर अपना फोन खोला, एक फाइल स्क्रीन पर निकाली और उसकी तरफ करते बोला, ये शाकिर का रिकॉर्ड है। तुम्हारी शिकायत के अलावा भी उस पर पहले से 3 केस दर्ज हैं, 2 धमकियों के और एक अगवा की कोशिश का। मसला सिर्फ यह है कि अब तक कोई चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया था और ज्यादातर लोग डर के मारे खामोश रहते थे। तुम पहला कदम हो जो खुलकर सामने आई हो। नरमीन ने खामोशी से फाइल की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में नमी झलकने लगी थी। वो बोली कुछ नहीं, बस सर झुकाए सुनती रही। इबाद ने बात जारी रखी, तुम्हारी गवाही अहम है। अगर तुम ठोस और तफसील से बयान गो दोगी तो ये केस मजबूत हो जाएगा, और अगर तुम पीछे हटी तो ये फिर बच निकलेगा जैसे पहले निकला था। नरमीन ने धीरे से सर हिलाया। उसकी आवाज मध्यम थी। मैं नहीं हटूंगी। मैं हर वो बात बयान करूंगी जो मेरे साथ हुई और जो मेरे बाबा के साथ हुई। इबाद ने एक लम्हे को उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, और अगर तुम वाकई संजीदा हो तो एक बात और याद रखो, पुलिस का निज़ाम आसान नहीं। सवाल सख्त होंगे, रवैये कठिन होंगे। तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा। नरमीन ने इस बात में सर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी नदामत छुपी हुई थी। इबाद की मेहनत, उसका सस्पेंशन खत्म करवाना और केस पर संजीदगी, ये सब उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो धीरे से बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप फिर से मेरे लिए इतना कुछ करेंगे। मैं शर्मिंदा हूं। इबाद ने नजरें चुराई। फिलहाल शर्मिंदगी छोड़ो, अब तुम्हें हौसले की जरूरत है। 3:30 बजे तक तैयार रहना, हम चलेंगे। और वो खामोशी से सर हिलाकर उठ गई, लेकिन उसके दिल में एक बोझ था, शुक्र का, एहसास का और इस शख्स का जो अब भी खामोशी से उसका मुहाफिज बने खड़ा था। वक्त की रफ्तार न कभी थमी है और न कभी थम पाएगी। 3 माह का वक्त इबाद जहांगीर और नरमीन के लिए एक तवील जंग जैसा था। एक जंग सच्चाई की, हिम्मत की और इंसाफ की। इबाद हर वक्त उसके लिए खड़ा रहा था, ना दिन देखता था और ना रात देखता था। पुलिस स्टेशन की कुर्सियों पर घंटों बैठा, अदालतों के चक्कर, रिपोर्ट्स, गवाहियां, सबूतों की तफ्तीश और सबसे बढ़कर नरमीन का हौसला, ये सब आसान नहीं था। इबाद ने ना सिर्फ अपना सस्पेंशन खत्म करवाया था, बल्कि इस केस को अपनी जाती जिम्मेदारी बना लिया। उसके सामने कोई आम केस नहीं था, ये एक कमजोर लड़की की इज्जत, एक बेगुनाह बाप का कत्ल था। नरमीन के ठोस बयानात, सुलेमान साहब के कत्ल के शवाहिद और सबसे बढ़कर शाकिर पर पहले से दर्ज शिकायत ने केस को मजबूत बना दिया था। शाकिर एक चालाक मुजरिम था। वो पहले भी कई बार बच निकलता रहा था, लेकिन इस बार उसके सामने इबाद जहांगीर खड़ा था, वो अफसर जो ना बिकता है और ना झुकता है। इबाद ने एक दिन अदालत के बाहर नरमीन से कहा था, ये वक्त मुश्किल जरूर है, लेकिन जब तुम खुद सच पर हो तो इंसाफ तुम्हारे कदम चूमता है, बस पीछे मत रहना। नरमीन ने संजीदगी से सर हिलाया था। उसकी आंखों में वो खौफ तो अब भी था, लेकिन उस खौफ के साथ एक भरोसा भी था, इबाद पर और उसकी सच्चाई पर। गवाहों से लेकर मेडिकल रिपोर्ट्स तक हर चीज इबाद ने खुद चेक की थी। उसने पुलिस की रिवायती सुस्ती को खुद अपनी मौजूदगी से तोड़ा। रोजाना की बुनियाद पर वो थाने में मौजूद रहता, हर कार्रवाई में शामिल होता। उसने नरमीन को खुद सिखाया कि बयान कैसे देना है और सवालों के जवाब कैसे देने हैं। अदालत में जब नरमीन ने जज के सामने अपने तमाम हकाइक बयान किए तो कमरा अदालत में खामोशी छा गई थी। इबाद कमरा अदालत के आखिरी बेंच पर बैठा था, चेहरे पर गहरी संजीदगी मगर निगाहों में इत्मीनान। आखिरकार 3 माह बाद फैसला आया। शाकिर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। इबाद ने जब अदालत से बाहर निकलते नरमीन की तरफ देखा तो पहली बार वो बिना कुछ कहे मुस्कुराया था। नरमीन ने धीरे से कहा, आपने वादा निभाया, आपने मुझे बचा लिया। इबाद ने संजीदगी से मगर नरमी से कहा था, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है, बाकी काम तुमने खुद किया।
डर के बावजूद सच बोला। तुम जीत गई नरमीन। ये जुमला कहकर वो आगे बढ़ गया। नरमीन वहीं खड़ी थी, खामोश, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उस शख्स के लिए गहरी मोहब्बत जाग उठी थी जिसने 3 माह बिना सोचे समझे उसके पीछे ख्वार किए थे। ये तक नहीं सोचा था कि उसकी वजह से उन्हें 3 माह कितने हर्डल्स का सामना करना पड़ा, किस तरह उसको रिजेक्ट किया गया, उसके बच्चों को एक बोझ कहा गया। बेशक सच्ची मोहब्बत करने वाले अपना आप एक रोज जरूर साबित करते हैं, और अब इसकी बारी थी अपना आप साबित करने की। रात की स्याही चारों जानिब फैल चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा था। सिर्फ बैरूनी रोशनियों की मध्यम किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही थी। इबाद थकन से चूर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। एक तवील और थका देने वाले दिन के बाद उसका इरादा सीधा अपने कमरे में जाने का था। उसने जूते उतारे, फोन साइड पर रखा और अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि लाउंज से हल्की सी सांसों की आवाज ने उसकी तवज्जो खींच ली। उसने मुड़कर देखा। नीम तारीक लाउंज में सोफे के एक कोने पर नरमीन चुपचाप बैठी थी। रोशनी की एक लकीर उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखें जैसे किसी एक मुकाम पर जमी हुई थी। इबाद के कदम खुद ब खुद उसकी सिमत उठने लगे। वो चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, क्या हुआ, यहां क्यों बैठी हो? नरमीन ने चौंक कर इबाद की तरफ देखा। उसकी आंखों में इंतजार की थकन और दिल की शिद्दत एक साथ मौजूद थी। आपका इंतजार कर रही थी, वो आहिस्तगी से बोली। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज बैठ जाएं। इबाद ने एक लम्हा उसकी आंखों में झांका, फिर खामोशी से उसके बराबर बैठ गया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही, जैसे अल्फाज खुद को तरतीब दे रहे हों। नरमीन ने अपनी नजरें झुकाई, फिर आहिस्तगी से बोली, एक लड़का जब मोहब्बत करता है तो वो सब कुछ लुटा देता है, लेकिन एक लड़की जब मोहब्बत करने पर आती है तो वो खुद को खत्म कर देती है। इबाद जहांगीर। इबाद का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। वो कुछ नहीं बोला, बस साकित बैठा रहा। ये बात मैं पूरे होशो हवास में कह रही हूं, कोई जज्बाती लम्हा नहीं, कोई कमजोरी नहीं। मैंने खुद से लड़कर, खुद को टटोल कर यह फैसला किया है। नरमीन की आवाज कांप रही थी। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। इबाद की नजरें अब उसके चेहरे पर गड़ गई थी। वो सांस रोके सुन रहा था, पूरी तवज्जो से, बिना किसी रद्दे अमल के। मुझे पता है आप शायद मुझे कबूल ना करें, शायद दिल में वो दीवार अभी भी खड़ी है जो 3 साल पहले खड़ी की गई थी, शायद आपके दिल में मेरा गिला अभी भी बाकी है, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकती। नरमीन ने गहरी सांस ली और फिर नरमी से बोली, ये सब बातें मैं कोई फिल्मी सीन देकर नहीं कह रही और ना ही किसी कमजोर लम्हे की देन है, ये मेरे दिल की आवाज है। उसने बात की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन लहजा मुकम्मल तौर पर साफ और मजबूत था। खुदा के लिए एक बार, सिर्फ एक बार मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करें। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप अभी कुछ वादा करें, बस मेरे एहसासात को रद्द ना करें, खामोशी से ही सही। सुन लें इबाद अब भी कुछ नहीं बोला था। वो बस नरमीन को देख रहा था, जैसे पहली बार किसी को देख रहा हो। लाउंज की खामोशी में सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। नरमीन ने सच बोल दिया था, सब कुछ कह चुकी थी जो बरसों से दिल में दफन था। इबाद अब भी खामोश था, नजरें जमीन पर, जैसे हर बात को दिल के अंदर उतार रहा हो। नरमीन ने एक गहरी सांस ली। बोलने ही वाली थी कि इबाद की आवाज उभरी, धीमी मगर साफ। तुम्हें कबूल करने का मतलब है तुम पर जिम्मेदारी डालना, और तुम्हारा बाप नहीं चाहता था कि तुम पर बच्चों की जिम्मेदारी आए। नरमीन ने धीरे से सर उठाया। आंखों में नमी थी, मगर लहजा मुकम्मल यकीन से भरा हुआ था। वो बाबा चाहते थे, लेकिन मैंने नहीं चाहा। मैं उनकी बात से कभी मुत्तफिक नहीं थी। मुझे इन बच्चों से जितनी मोहब्बत है, मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई और औरत इन्हें इतना चाह सकती है। मेरे हाथों में वो बड़े हुए थे इबाद, वो मेरी गोद में खेलते थे, मेरे साथ सोते थे। चाहे 3 साल का फासला आ गया हो, लेकिन वो मोहब्बत ना मुझ में कम हुई है और ना ही उन बच्चों में। उसने एक लम्हे को रुककर उसकी आंखों में झांका, फिर हौले से बोली, और जहां तक मुझे मालूम है आपके दिल में भी वो मोहब्बत खत्म नहीं हुई जो आप 3 साल पहले मुझसे करते थे।
वही मोहब्बत जिसके लिए आपने मेरे बाबा से रिश्ता मांगा था। मैं जानती हूँ वक्त सब कुछ नहीं मिटा देता, कुछ एहसासात वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। इबाद का दिल जैसे लरस गया। वो साकित था मगर उसकी आंखों में वो नबी अब भी वाज़िहा थी। नरमीन ने मजीद कहा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप मुझे कबूल करें तो मैं इन बच्चों की माँ बनकर जीऊंगी और आपके साथ वफा करके दिखाऊंगी। कमरे में खामोशी छा गई। इबाद ने सर झुकाया जैसे वो खुद से जंग लड़ रहा हो। फिर अचानक उसकी आवाज आई, धीमी, थकी थकी मगर दिल से निकली हुई। तुम्हें नहीं पता नरमीन, जितना इंतजार मैंने तुम्हारा किया है शायद ही किसी ने किसी का किया हो। वो नजरें उठाकर उसे देखने लगा। आंखें नम थी। इन 3 सालों में कोई रात ऐसी नहीं थी जब मैंने रब से ये दुआ ना की हो कि तुम लौट आओ, और रब ने मेरी दुआ सुन ली, वो भी उसी लम्हे जब मैं हार मानने ही वाला था। नरमीन की पलकों से आंसू गिरने लगे थे। वो खामोशी से इबाद को देख रही थी। इबाद आहिस्ता से उठा, उसके पास आया, चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर नरमी से अपने बाजू फैलाए और बगैर कुछ कहे उसे सीने से लगा लिया। नरमीन की सिसकी उसके सीने में दब गई। वो दोनों एक मुकम्मल खामोशी में लिपटे खड़े रहे, जहां ना कोई वजाहत बाकी रही ना शिकायत, सिर्फ कबूलियत थी। कुछ लम्हों बाद इबाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मध्यम लहजे में बोला, अब ना तुम कहीं जाओगी और ना मैं तुम्हें जाने दूंगा। हम कल निकाह की बात करेंगे। मेरे बच्चे अब माँ के लम्स से महरूम नहीं रहेंगे और मेरा दिल वो भी मुकम्मल हो जाएगा। नरमीन ने सर उसके सीने में छुपाते बस इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।